الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تعالى في آية أخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت سارے جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دی زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد پھر لازم ہے ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کرنا پھر باغ مصطفیٰ میں بہار ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شراب مصطفی سے شراب بولا محترم حضرات ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کا اور اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں آج پریشانی کسی اور سے نہیں خود اپنے آپ سے ہے خود اپنی ذات سے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہی مسلمان نہ رہے ہمارے سینوں میں جو ایمان کی چنگاری تھی وہ بجھ گئی ہمارے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے تھی وہ نہ رہی ہمارے اپنے دلوں میں ایمان کی جو حرارت اور تازگی ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہر چوہا ہمیں اپنے دانت دکھاتا ہے اور ہر گلہری
ہمیں کاٹ کھاڑنے کی ان کی دوڑتی ہے اور گیدڑ بھی ہمارے شکار کا پلان بنا رہا ہے۔ افسوس تد افسوس، ہم کہتے تو اپنے آپ کو سنی ہے، لیکن شاید سنی ہونے کا مفہوم ہم آج تک نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے تو اہل سنت والجماعت، لیکن ہم ابھی تک اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے کسے ہیں یہ نہیں سمجھ سکے، نہیں جان سکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سنی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہو گے جو آپ کی بات سننے آیا ہے وہ سنی ہے، اور جو سننے نہیں آیا وہ سنی نہیں ہے۔ جس نے اپنے کانوں سے آپ کی بات سنی وہ سنی ہے، اور جس نے نہ سنی وہ سنی نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے کہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کیا ہے کہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب دوبارہ سن لیجیے اور یاد کر لیجیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے وہ اہل سنت یعنی سنت والا۔ اہل کے معنی آتے ہیں والا، والجماعت، اور جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، جو صرف یہ نہ کہتا ہو کہ میں صرف نبی کی سنت پر چلوں گا، بلکہ نبی کی سنت کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہو کہ میں صحابہ کی سنت پر بھی چلوں گا، وہ اہل سنت والجماعت۔ اور جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے، جو صحابہ سے اپنا ناطہ توڑ لے، جو صحابہ کرام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ مت کھاؤ مسلمانوں، دھوکہ مت کھاؤ۔ کوئی بھی کلہاڑی کبھی کسی لکڑی کے درخت کو نہیں کاٹ سکتی جب تک کلہاڑی میں لکڑی کا رستہ ہو۔ کوئی کلہاڑی، کوئی لوہا کسی پیڑ کو چھانٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس میں لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ مسلمانوں کو نقصان کھلے ہوئے کافروں سے نہیں، کھلے ہوئے دشمنوں سے نہیں، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان آستین کے سانپوں سے پہنچا ہے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان ان سے پہنچا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن، سنت اور صحابہ پر جب ان کو رکھا جاتا ہے تو وہ نہ قرآن پر چلتے ہیں، نہ سنت پر چلتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں، وہ اس سے خارج ہیں۔ لیکن افسوس، سب افسوس یہ ہے کہ مسلمان، جو مسلمان ہے وہ کھلے ہوئے کافروں کو تو کافر سمجھتا ہے، لیکن آستینے کے سانپوں کو وہ سانپ نہیں سمجھتا۔ اسلام نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں جانا۔ رات ہی میں نے ہندوستان کی راجدھانی دلی کی سرزمین پر یہ عرض کیا ہے، اور آج آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں عرض کرتا ہوں، 1450 برس پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر کے بتا دیا ہے کہ مسلمان کون ہے، کس کو مسلمان کہا جائے گا، اور عمر ابن خطاب کے اس فیصلے پر عرش اعظم سے فتویٰ آیا ہے۔ فتویٰ مدینے کا نہیں، فتویٰ محمد رسول اللہ کا نہیں، وہ فتویٰ ابوبکر صدیق کا نہیں، وہ فتویٰ علی مرتضیٰ کا نہیں، وہ فتویٰ عثمان غنی کا نہیں، وہ فتویٰ عرش اعظم سے آیا جب ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، مقدمہ لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا گواہوں کو اور دلائل اور چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا انصاف کا، اس لیے کہ آپ انصاف کرنے کے لیے آئے۔ اسلام انصاف کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے۔
हमें ये हुक्म है हमारे कुरान का, हम कितने ही जज्बाती हो जाएं, हम कितने ही किसी मकाम पर खड़े हों, लेकिन कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस दर्जे पर अंगेख्ता न कर दे, तुम्हें इतना जज्बाती न बता दे कि तुम इंसाफ छोड़ बैठो और अपने मध्य मुकाबिल कौम से जुल्म करो। ऐसा मत करना, इदिलू हर हाल में इंसाफ करना, वो अक़रबु लित्तक़वा, तक़वा के करीब है। जब फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचा तो यहूदी उस मामले में हक पर था, दीन हक पर नहीं, उस मामले में हक पर था। जो चीज उसकी थी उसके पास गवाह मौजूद थे, जो चीज उसकी थी उसके पास शाहिद मौजूद थे, जो चीज उसकी थी उसके पास तहरीर मौजूद थी। दीन चाहे उसका बातिल था, दीन उसका दीन हक नहीं था, लेकिन वो अपने इस मामले में हक पर था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला उसके हक में दिया। मुसलमान समझता था कि फैसला मेरे हक में आया। ये मुसलमान था, फैसला कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब इस मुसलमान ने उस यहूदी से कहा कि भाई जरा अभी ठहर जा, और बकरी सिद्दीक के पास चलते, शायद कोई कंप्रोमाइज की राह में चला है, कोई शायद सुलह का रास्ता नहीं चला है। और बकरी सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे। यहूदी ने कहा फैसला तो हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गया था, उन्होंने मेरे हक में फैसला कर दिया है, मगर ये मुसलमान नहीं मानता, आपके पास ले आया, आपकी क्या राय है? और बकरी सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा जो फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है वही फैसला हक है, मैं कोई राय नहीं दे सकता। ये मुसलमान यहां से भी मायूस हुआ, सोचा कि उमर इब्न खत्ताब के बारे में आता है, वह अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, उनके बारे में आता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफिरों और यहूदियों और ईसाइयों के मुकाबले में बहुत सख्त है और मुसलमानों के लिए नर्म है। इस मुसलमान को उम्मीद हो चली कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अगर जाऊंगा तो अपना फैसला सुना देंगे कि हाँ नहीं यहूदी का मुस्तहिक नहीं है, और जब मेरे हक में फैसला आएगा तो मैं डंडे के जोर पर, ताकत के जोर पर और अपने कबीले के जोर पर चीज को हथिया लूंगा, यहूदी महरूम होकर चला जाएगा। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे तो हजरत उमर से उस यहूदी ने कहा फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह कर चुके हैं और बकरी सिद्दीक जवाब दे चुके हैं, मगर इसका इकरार था कि आपके पास आया जाए, तो आपका क्या फैसला है, आप भी कुछ देख लीजिए इस फैसले के बारे में। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ये फैसला मुझसे चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी नहीं हुआ। कहा नहीं हुआ ये राजी, क्या अबू बकर सिद्दीक के पास भी गया ये? क्या हाँ वहां भी गया? अच्छा मुझसे ही फैसला चाहिए, ठहर जा जरा, मैं अभी फैसला करता हूँ। घर के अंदर गए और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चमचमाती हुई तलवार लेकर आए और एक ही बार में उसकी गर्दन सर से जुदा करके ये कहा कि उमर से फैसला कराना चाहता है जा। उमर ने फैसला कर दिया, तेरी मां तुझको रोएगी और तेरी बीवी अब मातम करेगी। हो गया फैसला, फैसला कर दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि सिर्फ नाम ले लेने से मुसलमान नहीं हो जाता। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैसलों को न माने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कानून को न माने, जो आपकी शरीयत पर न चले, उसकी सजा मौत है। और उसका जब फैसला करना था कि तमाम के तमाम उठ खड़े हुए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये कहा कि इन्होंने एक मुसलमान का कत्ल किया है, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने फैसले पर डटे रहे। उन्हें उम्मीद थी कि मैंने मुसलमान का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी मुसलमान को नहीं मारा है, मैंने एक मुर्तद को मारा है, मैंने इस्लाम से फिर जाने वाले को मारा है। इंशाअल्लाह मेरा सिफा होगा और अल्लाह तबारक व तआला मेरे सिफा में कुरान नाजिल करेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की सूरत को नाजिल फरमाया, कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, उमर का ये फेल क़यामत तक के लिए कानून और ज़ाब्ता बन चुका है। जो भी मुसलमानियत का दावा करे और तेरे फैसले को न माने और तेरे हुक्म को न माने और तुझे हकम न माने, वो मुसलमान है कि नहीं? उमर ने मुसलमान का नहीं बल्कि छुपे हुए आकीम को साफ का कत्ल।
नाम लेने से खाली मुसलमान नहीं होता। ये समझ लीजिए कुरान और सुन्नत की रोशनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं। जो उनके फैसले को ना माने वो कौन हो सकता है? ये आज की मजलिस में तय करके जाओ। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान को ना माने वो क्या हो सकता है? ये फैसला करके जाओ। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर ज़िना की तहमत लगाए और आपको नऊज़ुबिल्लाह ज़ानिया कहे, और कुरान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सदाकत बयान करे, उनकी तहारत को बयान करे, उनकी पाकीज़गी को बयान करे, और जो शख्स ये कहता हो कि हज़रत आयशा ने नऊज़ुबिल्लाह ज़िना किया है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है? आप सोचते क्यों नहीं हो कि जो शख्स ये कहे, जो अपनी किताबों में ये लिखे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह में जहन्नम की आग पहुंच कर रहेगी, इसलिए कि उन्होंने दो काफिरा औरतों से लज्जत हासिल की थी। एक से इशारा हो हजरत हफ्सा की तरफ और दूसरे से इशारा हो हजरत आयशा की तरफ, तो जो कुरान की बरात को हजरत आयशा के सिलसिले में न माने वो मुसलमान हो सकता है। मगर तुम्हारी मस्जिद में तो वो तुम्हारे मुर्दों को बख्शवाने आता है, उसके बगैर तुम्हारा मुर्दा जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हारी मस्जिद में तो वो तुम्हारे मुर्दों को जन्नत में बख्शवाने आता है। अरे इस्लाम ने दो कैटेगरी की, एक खुला हुआ काफिर, कह दिया उससे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन। लेकिन इस्लाम में एक वो है जो मुर्तद है, इस्लाम से फिर जाने वाला। एक तरफ तो सुन्नियों अपनी नमाजों में खड़े होकर वित्र की नमाज में कहते हो, अपनी वित्र की नमाज में कहते हो वनखलाऊ वनफ्रुकू मय्यजुरु, अल्लाह से इकरार करते हो नमाज में खड़े होकर, हर ईशा की नमाज में, हर वित्र की नमाज में, कि हम उसको छोड़ देते हैं, हम उससे अलहदा हो जाते हैं जो तेरी नाफरमानी करता है, हम उससे कता ताल्लुक कर लेते हैं, हम उसके दस्तरखान पर नहीं जा सकते। याद रखो हमारे अंदर की गैरत खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है हमारी गैरत। हमारे बाप को कोई गाली देता है तो हमारा खून उबल पड़ता है और हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है। हमारी माँ को कोई गाली दे तो हम उठ खड़े होते हैं और हमारा चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन जो माँ को गाली देता रहे, उसे फर्ज जाने, उसे सुन्नत जाने, उसे इबादत जाने, जो हजरत हफ्सा को बुरा कहे, जो हजरत उमर को मुर्तद कहे और बकर सिद्दीक को मुर्तद कहे, जो कुरान को ये कहे कि कुरान बदल दिया गया है, जो ये कहे कि बकर की बकरियां इसे खा गई हैं, उसके साथ तुम दोस्तियों के हाथ बढ़ाओ, उनके यहाँ जाके शरबतों के जाम पियो और उनके यहाँ जाकर के मुर्गे अंडे खाओ और उनकी शादियों में शरीक हो, और उसके बाद फिर आज रो कि ये क्या हो गया। ये वो हुआ है जिसकी असलियत तो तुम जानते नहीं। और याद रखना, जलसा अच्छा होता नहीं होता इसकी कोई बात नहीं है, आज के बाद भी ना हो, लेकिन तुम्हारे इस ताल्लुकात पर कल अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कयामत के मैदान में बंद कर दो भाई से। हवा ठंडी खानी है तो बाहर चले जाओ, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। 5 मिनट पसीना नहीं बहा सकते हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाले। याद रखो इस दुनिया में कुछ भी ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला, क्या हजरत हसन, क्या हजरत उमर, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला मुझे और तुम्हें माफ कर देंगे? मुझे और तुम्हें वो छोड़ देंगे कि सहाबा किराम से दुश्मनियां रखने वाले,
صحابہ کرام को खुलेआम गालियां देने वाले और अपने पैरों पर उनके नामों को लिखने वाले और उनके पुतले बनाकर उन पर जूतियां मारने वाले और अपने पेशाब घरों में और पखानों में उनके नाम लिख करके उन पर पेशाब करने वालों से तुमने जिंदगियों में दोस्तियां की हैं, तुम्हारी राज टपकती थी, तुम हजरत हुसैन के मानने वाले हो। हजरत हुसैन तो वो थे कि जिन पर पानी का दरवाजा बंद कर दिया गया और पानी उन पर रोक दिया गया, उनके बच्चों के मुंह में छाले पड़ गए प्यास पे और उनके मुंह में कांटे पड़ गए और उनके हलक सूख गए और अली अकबर, अली असगर और उनकी बहनें हजरत हुसैन से तड़पती रही और पुकारती रही। लेकिन हजरत हुसैन यह मजाल थी कि किसी जालिम हुकूमत के सामने अपना सर झुका देते। हाँ सुनो, हम यजीद को अच्छा नहीं कहते किसी के डर से नहीं, बल्कि हम इसलिए नहीं कहते कि यजीद ने जो कुछ किया वो गलत किया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल का उसने फैसला किया। लिहाजा आज कोई सुन्नी पूरे हुए जमीन का एक बता दो जो अपने बेटे का नाम यजीद रखता हो। रखता है कोई? हम भी यजीद से नफरत करते हैं, हम उसे हक पर नहीं मानते। हम तो हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वाकई मोहब्बत करके दिखाओ, मोहब्बत करके दिखाओ। ये है आइडियल हजरत हसन और हजरत हुसैन की जिंदगी। हजरत हसन और हुसैन ने अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का सहाबी माना, अल्लाह के रसूल का सहाबी माना। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिब वही जाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अमीर माविया को शुमार किया। हजरत हसन ने उनसे सुलह कर ली और हुकूमत उनके सुपुर्द कर दी। हम ये नहीं कहेंगे कि हजरत हसन डर गए या हजरत हसन ने तक़िया कर लिया या हजरत हसन घबरा गए। रब्बे काबा की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर हजरत हसन और हजरत हुसैन अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला को भी अगर गलत समझते तो उनके खिलाफ भी तलवार लेकर उठ खड़े होते, उनके खिलाफ भी वो निज़ और खंजर लेकर निकल खड़े हुए। वहां उन्होंने उनको मुस्तहिक़ हुकूमत जाना, उन्हें साहिब ईमान जाना, उन्हें अफजल तरीन जाना। लिहाजा हुकूमत उनकी सुपुर्द कर दी। लेकिन जब उनका बेटा यजीद तख्त शाही पर बैठा तो हजरत हुसैन ने एक की परवाह नहीं की और अपने खानदान और अपने लोगों को लेकर मैदान करबला की तरफ निकल गए। यहाँ तक कि उन्होंने शहादत का जाम पी लिया और अपने मानने वालों से कहा, मैंने अपने नबी से सुना है अफजलुल जिहाद कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जाइर। अरे सबसे बड़ा जिहाद ये है कि आदमी जालिम और जाबिर के सामने हम बात कह दे। ये दिन हजरत हुसैन की जुर्रतों का तज़किरा करने के हैं, ये दिन शहादतों का तज़किरा। इस्लाम की तारीख में करबला के शहीद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस्लाम की तारीख में बद्र के 14 शहीद भी हैं। इस्लाम की तारीख में उहद के 70 शहीद हैं। हम किसी में कोई फर्क नहीं करते। ये यहूदी है जो हजरत ईसा और हमारे नबी को नहीं मानते, ये ईसाई है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मुसलमान वो कौम है जो पहले नबी से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, हम किसी नबी के दरमियान फर्क नहीं करते। हम हजरत मूसा को भी अल्लाह का नबी कलीमुल्लाह मानते हैं, हम हजरत दाऊद को भी अल्लाह ताला का नबी मानते हैं, हम हजरत सुलेमान को भी अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, हम हजरत ईसा को भी अल्लाह का नबी रूहुल्लाह मानते हैं, हम हजरत आदम को भी अल्लाह तबारक व तआला का नबी सफीउल्लाह मानते हैं, हम इब्राहीम को भी खलीलुल्लाह मानते हैं, हम इस्माइल को भी ज़बीहुल्लाह मानते हैं, हम हजरत इसहाक को भी अल्लाह का नबी मानते हैं। जिस तरह हम नबियों में कोई फर्क नहीं करते, 1,25,000 नबी में से हम किसी एक नबी का इनकार नहीं करते, इसी तरह हम 1,25,000 सहाबा में किसी का भी इनकार नहीं करते। नारे तकबीर। किसी शहीद में हम इस तरह फर्क नहीं करते कि अपनी तरफ से किसी को आला अफजल करार दे। हाँ, मेरा नबी जिसे अफजल करार दे गया, जिसे शहीदों का सरदार बना गया, वो शहीदों का सरदार है। हम इसमें कोई इल्जाम तलाशी किसी पर नहीं करते। आका ने फरमाया, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला
सय्यद शुहदा हैं, जिनके उहद में 13 टुकड़े हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये शहीदों के सरदार हैं, लेकिन जिस तरह ये शहीदों के सरदार हैं तो हजरत हसन और हुसैन तमाम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और फातिमा ज़हरा तमाम औरतों की जन्नत की सरदार है। इमामुल अंबिया का लक़ब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है, तो सय्यद शुहदा का लक़ब हजरत हमजा के लिए है, तो सय्यदा शबाबी अहले जन्नत का खिताब हसन और हुसैन के लिए है। हम एक एक सहाबी से मोहब्बत करते हैं। जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देखो मुसलमानों, देखो झांक कर। कुरान करीम आपको एक ऐसी कौम का पता देता है जो हमेशा हमें आपसे दुश्मन नफरत करती है। उस कौम को जानते हैं आप? नहीं जानते, नहीं जानते। आप सांप को जानते हैं कि आपको काटता है, आप शेर को जानते हैं कि आपको फाड़ता है, आप हाथी को जानते हैं कि आप पे हमला करता है, आप बिच्छू को जानते हैं कि डंक मारता है, आप कुत्ते को जानते हैं कि भौंकता है, आप इन जहरीले जानवरों को जानते हैं, भीड़ और तसैया को आप जानते हैं, मधुमक्खी को आप जानते हैं कि डंक मारती है। लेकिन कुरान करीम में 1450 बरस पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम का तुम्हें पता दिया कि वो कौम तुमसे सबसे ज्यादा दुश्मनी रखती है ले ईमान से, और वो कौम है यहूदी। लतजिदन्न, 6 पारा सूरह माइदा, अपने उलमा से सुनो। लतजिदन्न अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अहले ईमान से सबसे शदीद दुश्मनी रखने वाली एक कौम है जिस कौम को यहूदी कहा जाता है। याद रहेगा, सबसे ज्यादा दुश्मनी रखने वाली ये कौम। सांप आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, भेड़िया आपके बच्चे को उठाकर ले जा सकता है, शेर आपको फाड़ के खा सकता है, और इसी तरह से हाथी आपके चीर के टुकड़े कर सकता है, भीड़ और तसैया का जहर आपके जिस्म में चंद घंटों के लिए तकलीफ कर सकता है। लेकिन ये वो कौम है जो तुम्हारी हमेशा हमेशा दुश्मन है, जो तुम्हारे जिस्म की भी दुश्मन है, तुम्हारे रूह की भी दुश्मन है, जो तुम्हारे दीन की भी दुश्मन है, और तुम्हारे ईमान की भी दुश्मन है, जो तुम्हारे इस दुनिया में भी दुश्मन है, और मैदान महशर में भी दुश्मनी का रंग दिखाना चाहती है। वो शैतान के पास तार उसकी औलाद है, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से तुम जन्नत में न चले जाओ और तुम उनके साथ जहन्नम में। आज बताता हूं आपको थोड़ी सी हालात। उस कौम का, यहूदी कौम का पहला टकराव ईसाइयों से हुआ। ईसाइयों को तो आप जानते हैं, क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो ईसाइयों ने उनको नहीं माना, इनकार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और उनके कत्ल की हर तदबीर कर ली और हर इरादा कर लिया। यहां तक कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर न उठाता, अगर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें चौथे आसमान पर महफूज न करता, अगर अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत का इंतजाम न करता, तो वो भी हजरत ज़करिया और हजरत यहया की तरह कत्ल कर दिए जाते। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसमानों पर उठा लिया और उन्हें महफूज रखा। उसके बाद जब वो आसमान पर उठा लिए गए तो उनके मानने वाले, उनके जानने वाले उस वक्त के तौहीद परस्त और मुसलमान थे। यहूदियों ने उनका कत्ल शुरू किया और उनसे मुकाबला कर दिया। सेंट पॉल नाम का एक यहूदी जो ईसाइयों से लौटा था और उन्हें कत्ल करता था, उसने एक मंसूबा बनाया कि कत्ल से तो हमारे लोग भी मरते हैं, उनके मरते हैं तो हमारे भी मरते हैं, और वो हक पे मर करके जन्नत में चले जाते हैं। इसलिए मैं इनका दीन ही बदल देता हूं, लड़ाई की जरूरत नहीं।
हम इसलिए तो लड़ रहे हैं कि हम हक पर हैं और वो हक पर नहीं है, इसलिए उसने मंसूबा बनाया सैन पालने के मैं इनका पूरा दीन ही तब्दील किए देता हूं और इन्हें ईसाइयत से दीन इस्लाम से निकाल करके इन्हें मुशरिक बना देता हूं। काम खत्म, लड़ने की जरूरत ही नहीं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? भैया तुम क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? सुनना नहीं है तो बुलाया नहीं होता। और बहुत सारी दुनिया है सुनाने की, बहुत बड़ा दुनिया है, बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है, खाली सैदपुरी नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है सुनने वाले, बहुत मानी। अब सेंट पॉल ने क्या मंसूबा बनाया? आज तक उसकी कौम उसे सलामी पेश करती है। घोड़े पर सवार हुआ, जिस घोड़े पर चढ़ के वो ईसाइयों को कत्ल करता था, और अपने कौम के बड़ों से मशवरा करके गया कि मैं पूरी कौम को फना कर देता हूं, छीन लूंगा इनसे दीन इस्लाम, इनसे तौहीद छीन लूंगा, इनसे इनका ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ अकीदा छीन लूंगा, मुझे चंद दिनों की मोहलत दो, पूरी कौम के लिए तुम्हारे लिए काम करके चला जाऊंगा। ईसाइयों के पास आया और आकर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की मुझे बिशारत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे अगर तू ईसाई हो जाए। मैं आज यहूदियत से तौबा करता हूं और मैं आज ईसाई होता हूं। ईसाई खुश हो गए कि यहूदी मुसलमान हो रहा है, खुश हो गए। एक यहूदी आज ईसाई हो रहा है, जो कल तक हमें कत्ल करता था, वो आज हमारी सफों में आ रहा है। उसने कहा कि मुझे बपतिस्मा दे दो, यानी मुझे रंग दो। ईसाइयों के यहाँ रंग दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ खतना होती है, सीता होता है, उनके यहाँ रंग में डुबाया जाता है। इस पर ईसाइयत का रंग चढ़ा दिया गया और उसके बाद उसने कहा कि मैं अपना इल्म तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं, मुझे 3 शागिर्द चाहिए। लेकिन तीनों शागिर्द वो आपस में नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैं अपने सीने का इल्म उन्हें देना चाहता हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम से मुझ तक आया। उसे 3 बहुत चालाक और होशमंद शागिर्द दे दिए। तीनों को उसने अलग अलग तालीम दी। एक शागिर्द को ये समझाना चाहा, ये इल्म पढ़ाया उसे कि ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, खुद ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला है, और उन्होंने ईसा का रूप इख्तियार किया और वो ईसा बनकर जमीन पर आ गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अज़ाब नहीं देना चाहता, उन्हें जहन्नम में नहीं डालना चाहता, इसलिए तमाम इंसानों की तरफ से जो गुनाह करेंगे उनका कफ़ारा बनकर अल्लाह ताला खुद अपनी मर्जी से सूली पर चढ़ गया ताकि इंसान गुनाह करते रहे और कोई गुनाह उन्हें नुकसान न पहुंचाए। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम इंसान नहीं बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला है। शागिर्द को ये सिखाया, ये पढ़ाया, ठीक है। दूसरे से कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, देखो उनकी मां का कोई शौहर नहीं, मरियम ने निकाह नहीं किया, लिहाजा वो अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपना बेटा बनाकर भेजा। तीसरे को ये तालीम दी, दूसरे को, और तीसरे शागिर्द से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला नहीं है, 3 मिलकर अल्लाह तबारक व तआला बनते हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला है, दूसरे ईसा अलैहिस्सलाम उनका बेटा है, और तीसरे जिब्राईल रूहुल कुदुस है। ये 3 मिलते हैं तो अल्लाह बनता है। और इन तीनों शागिर्दों को उसने 3 इलाकों में भेज दिया, एक को इस तरफ, दूसरे को उस तरफ, तीसरे को तीसरी तरफ, और जाओ ये तालीम फैला दो। लिहाजा आज पूरी दुनिया में जो ईसाई बसते हैं, सारी दुनिया में वो यही अकीदा रखते हैं, या तो उनमें से एक फिरके का अकीदा ये है कि ईसा अल्लाह तबारक व तआला ही है, एक कहता है कि वो अल्लाह के बेटे हैं, और एक कहता है कि अल्लाह ताला 3 मिलकर के अल्लाह तबारक व तआला बनते हैं। जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, उस शख्स ने, यहूदी ने कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा
काम किया कि उस कौम को जिसकी हिदायत के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, उस दीन को उसने शिर्क में तब्दील कर दिया। और आज पूरी ईसाई कौम शिर्क में मुब्तला है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का या तो बेटा मान रही है या अल्लाह ही मान रही है। एक इंसान को ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन मिला के अल्लाह बना रहे, और फिर अपना यकीन बढ़ाने के लिए उसने कहा कि आज मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से बिशारत हुई है, मुझे उन्होंने ये कहा है कि तूने जो पीछे ईसाइयों को कत्ल किया है, उसके कत्ल की तौबा ये है कि तू अपनी कुर्बानी और अपनी बलि चढ़ा दे। लिहाजा तमाम ईसाइयों को जमा किया, इस चर्च के सामने खड़े होकर उसने अपने ही खंजर से अपना गला काट लिया और कहा कि मैं अब अपने गुनाह की तौबा के लिए अपनी कुर्बानी, अपने माला को पेश कर रहा हूँ। ईसाइयों को यकीन हो गया कि सच्चा पक्का ईसाई, पूरी ईसाई कौम मुशरिक बना दी गई, रब की बातें बना दी गई, अल्लाह तबारक व तआला से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर डाल दी गई। और जब उसके बाद फिर इस्लाम आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे लेकर आए। 600 साल के बाद 610 ईस्वी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने आकर इस्लाम पेश किया, ये वही इस्लाम था जिसे कभी हजरत ईसा ने पेश किया था, ये वही इस्लाम था जो हजरत मूसा ने पेश किया था, ये वही इस्लाम था जो हजरत आदम से चला रहा था। लिहाजा अब यहूदियों का टकराव ईसाइयों से तो होना नहीं था, वो तो गए, उनको तो काम पर लगा दिया। किससे होना था? अब किस इस्लाम से होना था जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। उसके लिए वो पूरी जिंदगी चाले चलते रहे, यहाँ तक के मक्का के काफिरों को उन्होंने लाकर मदीना में भिड़ा दिया। लेकिन जब बद्र में उनके दांत तोड़कर अहले मदीना ने, अंसार और मुहाजिरीन ने, सहाबा किराम ने, वो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, वो जब निकले तो बद्र के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा किया अपने सहाबा से, मेरे सहाबा, अबू जहल 1000 लश्कर लेकर आया है, जिनमें से हर एक के पास तलवारें भी हैं, जिनमें से हर एक के पास नेज़े भी हैं, जिनमें से हर एक के पास ढाले भी हैं, जिनमें हर एक के पास बर्छियां भी हैं, जिनमें से हर एक के पास तीर और कमान भी है। मेरे सहाबा बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो एक सहाबी ने खड़े होकर ये कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आप पर जानिसार हैं, लेकिन आपकी नजर मदीना के अंसार सहाबा पर थी, आपकी नजर अहले मदीना पर थी। अहले मदीना तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह अकबर। मिक़दाद बिन असवद खड़े हुए, हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें पूछना चाहते हैं और हमारी राय लेना चाहते हैं? तो याद रखिए, हम मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली कौम नहीं है। आप इस बात को भूल जाइए कि हम 313 कुल 6 तलवारें लेकर आए हैं या 8 सिरे लेकर आए हैं। हम इन्ना नुकातिलु अन यमीनिका व शिमालिका व अमामिका व अन खल्फिका, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके पीछे भी लड़ेंगे और हम आपके सामने भी लड़ेंगे। ऐ रसूल, हमें हुक्म कीजिए, ये बद्र का मैदान नहीं। अगर आप हमसे कहेंगे कि बरकुल गमास तक चले जाओ, तो घोड़े को एड़ लगाते हुए उसकी लगाम को खींचते हुए बरकुल गमास तक जाएंगे। आप इशारा तो दीजिए, समंदरों में कूद जाएंगे। आप इशारा तो कीजिए, पहाड़ की चोटियों से हम आपके लिए छलांगे लगा देंगे। लिहाजा बद्र के मैदान में अंसार और मुहाजिरीन सहाबा किराम ने 70 की लाशें वही कुएं में डालकर और 70 को बांध कर मदीना में रखकर पहले मक्का और यहूदियों को पैगाम दिया कि लोग तुम्हारे बनाए हुए तारों के हम सारे तारों को उखाड़ कर फेंकेंगे। कामयाब नहीं हो सकते थे। तो फिर यहूदियों ने वही किया जो ईसाइयों के साथ किया था, वही किया। अरे भाई, पीछे क्या देख रहे हो बार बार? मना कर रहा था तकलीफ करने में और जबरदस्ती खींच पिला रहे हैं। पता नहीं पीछे कौन हसीना बैठी है जिसकी तरफ नजर जा रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वहां हमारे साहब को बुला लीजिए, तो तकलीफ कर देंगे। छोड़िए, आपने सुनना चाहिए। तो कल भी लग गई होगी ना बात।
کیونکہ محرم مسلم کی ہم پیر گزر جائیں گے. بات ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. اس کے بعد پھر تیاریاں کر رہی ہیں مٹے کی. کون روک رہا ہے آپ کو؟ جب آئے گا وقت تو دیکھا جائے گا. ابھی تو جمہوریت ہے, سیکولرزم ہے, جو چاہے کرے, زنا کرنے کی اجازت کرے, کھلے ہم کون روکتا ہے؟ ڈانس کرے, ڈانس کرنے کی اجازت کون روکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا قانون ہے 10 بجے کے بعد کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں بجے گا, بجائے کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ 10:30 بج رہے ہیں, لاؤڈ اسپیکر بج رہا ہے کہ نہیں؟ یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, یہ ہے کہ خلاف ورزی نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. مگر جب تمہارے لوگوں میں کچھ نہ باقی رہے اور تم اس بات کو بھی نہ سن سکو تو پھر تم مسجد میں بھی کل بات نہیں کر پاؤ گے. کچھ نہیں ہے, سننا تک تمہیں گوارا نہیں. آپ کو تو اللہ جزائے خیر دے امت مسلمہ کو اور صحابہ کو, ورنہ آج تو ہمارا ہر سنی ہم سے فتویٰ چاہتا ہے کہ ہمیں مٹے کی اجازت دے دو. جانتے ہو مٹا کیا ہے, کس نے حلال کیا ہے؟ میں وہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بنیادی بات. اور شاید آپ کے ذریعے سے آج یہ پھر جب یہ انٹرنیٹ پر بات جائے تو شاید دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں اور کروڑوں لوگ اس کو سن سکیں جنہیں پتا تک نہیں ہے, جو جانتے تک نہیں ہے کہ روئے زمین پر کیا ہو رہا ہے. لہذا دین اسلام کو وہ جب سامنے میدانوں میں آئے تو ان کی کمر توڑ دی گئی. خیبر کے یہودیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا. وہ جانتے تھے کہ ہم دین اسلام کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اسے سامنے سے کبھی شکست نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 2.25 سال تک کسی میں ہمت نہیں تھی جو جرأت کے ساتھ سر اٹھا پڑتا. جس نے زکات کا انکار کیا اس کا سر قلم کر دیا گیا. مسلمہ کذاب اٹھا تو اسے نیست و نابود کر دیا گیا. 2.25 سال میں ابوبکر صدیق نے مرتدین کا خاتمہ کر کے دم لیا. اور 2.25 سال کے بعد جب وقت وفات آیا تو مسلمانوں کی بات ڈور عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اے عمر, اندر کے سارے فتنے ختم کر چکا ہوں, کوئی سر نہیں اٹھائے گا. سارے سر اسلام کی چوکھٹ میں جھکا چکا ہوں, اور جو الگ ہٹتا تھا وہ تن سے جدا کر دیا گیا ہے. بیٹھ مسند خلافت پر اور اپنے گھوڑے شام اور روم اور ایران کی طرف دوڑا دے, فتح کر لے ایران کو. عمر ابن خطاب بیٹھے اور تخت شاہی پر بیٹھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے عراق کا رخ کیا اور ایران کا رخ کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح. 10 سال کے اندر دنیا کے چوتھائی حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل کر لی. یہودیوں نے یہ سوچا کہ حضرت عمر کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے, کیسے ان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو یہودیوں نے پلان بنایا کہ ان کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے, ان کے خلاف کس قوم کے دل میں جذبات ابھر سکتے ہیں. لہذا انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ایرانی قوم ہے جس نے طاقت کی دور پہ سر کو جھکا دیا ہے, لیکن اندر سے اس کے دل میں جذبات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے. لہذا انہوں نے ایران کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا اور اسی دھرتی پر آج تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایران آج بھی پوری دنیا میں یہودیوں کی ایجنسی کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا جب تک اس کا بتایا نہیں. سنو مسلمانوں, کسی ایران کا ایک شخص
اپنی پوری قوم کا انتقام لینے کے لیے، اپنی پوری قوم کی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں کے اشارے پر مدینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنتا ہے، گھوڑوں کی نالے بناتا ہے اور تلواریں بناتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ منصوبہ بناتا ہے کہ کسی نہ کسی دن مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا ہے۔ لہذا وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے ایک دن مسجد نبوی کے اندر نماز کی حالت میں، نماز کی اس حالت میں کہ جہاں صحابہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر پر وہ قاتلانہ وار کیا جو زہر خنجر میں ڈوبا ہوا تھا، 6 بار آپ پر کیے، ایک بار آپ کی ناف سے نیچے اٹھا دیا، حضرت عمر زمین پر تڑپنے لگے۔ اس شخص کا نام فیروز ہے، یہ ابو لولو ہے، اور ایران میں اس شخص کی عبادت اور پوجا معلوم ہے آپ کو؟ ارے آپ تو اپنے بچوں کے نام فیروز رکھتے ہیں، سنیوں میں لوگوں کے نام فیروز، اتنا بھی آپ کو ہوش نہیں کہ فیروز حضرت عمر کا قاتل ہے، اور اس کی قبر کاشان ایران میں بنی ہوئی ہے، اور جس کی قبر پر بابا شجاع الدین لکھا ہوا ہے، جس پر لکھا ہے یعنی دین کا بہادر، اور اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی قبر پر اور اس کے مدار پر لکھا ہوا ہے مرگ بر ابو بکر پر موت ہو، وہ مرگ بر عمر، اور حضرت عمر پر موت ہو، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ ایرانی قوم اس سے جا کے مرادیں مانگتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے جس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا۔ یہ ہے یہودیوں کی ایجنٹ جو آج بھی ہوئے زمین پہ۔ لیکن آپ کہتے ہو نہیں بھائی، جن کو دین جس طرح عیسائیوں کے پاس جو آج دین ہے، عیسائیوں کے پاس جو آج انجیل ہے، عیسائیوں کے پاس جو آج انجیل ہے، وہ سینٹ پال کی لکھی ہوئی ہے، وہ سینٹ پال نے لکھی ہے، وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی۔ آج پوری عیسائی قوم، وہ آرتھوڈکس ہو، رومن کیتھولک ہو یا پروٹسٹنٹ ہو، سب کے سب اس سینٹ پال یہودی کے لکھے ہوئے دین پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے عبداللہ بن سبا سے کہا تو مسلمان ہو جا، اور مسلمان ہو کر یہ کہہ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ عبداللہ بن سبا نے اسلام کا ڈھونگ کیا، اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے ایسا کیا، وہ حضرت عمر کے دور میں تو کر نہیں سکتا تھا، اس کی کھوپڑی اڑا دی جاتی، لیکن حضرت عثمان کے دور میں اس نے اسلام کا ڈھونگ کیا، اور اس نے سبائی فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ شخص تھا جو مسجد میں سب سے اول آتا تھا اور مسجد میں سب سے بعد میں جاتا تھا۔ اسی نے حضرت عثمان کا قتل کرایا، اور اسی نے حضرت علی کی خلافت کی بات شروع کر کے امت مسلمہ سے فرقے کو الگ کیا اور اس کے دین لکھ کر دیا، جس کا قرآن الگ ہے، جس کی حدیث الگ ہے، جس کی فقہ الگ ہے، جس کی مسجد الگ ہے، جس کے وضو کا طریقہ الگ ہے، جس کے نکاح کا طریقہ الگ ہے۔ دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے جو زنا کو جائز قرار دیتا ہو، سوائے اس دھرم کے جو یہودیوں نے لکھ کر دیا ہے، جس پہ حلال کا لیبل لگا دیا گیا ہے اور اسے متا کہا جاتا ہے۔ کوئی دھرم اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کے لیے کسی بھی بیٹی کے ساتھ زناکاری کی جائے، لیکن یہ اجازت دیتا ہے، اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ ثواب کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے من تمتع مرتن، جس نے ایک مرتبہ متا کیا فدرجتہ کدرجتی حسن، اس کا درجہ حضرت حسن کی طرح ہے۔ ومن تمتع مرتين، جس نے 2 مرتبہ کیا اس کا درجہ ہے حضرت حسین کی برابر، اور جس نے 3 مرتبہ کیا فدرجتہ کدرجتی علی، اور جس نے 4 مرتبہ متا کیا فدرجتہ کدرجتی رسول اللہ سے جھوٹ باندھا، اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسے رسول اللہ۔ دنیا میں کوئی دین اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی بچی کے ساتھ زنا کی اجازت نہیں دے گا، مگر یہ یہودیوں کا نکالا ہوا وہ دین ہے جس پر اسلام کا لیبل لگایا گیا، اور جس پر اسلام چسپا کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں، لہذا ان کے یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے۔ یہ جو شام میں اس وقت بشر الاسد بیٹھا ہے، سنو، اس وقت جو سیریا میں جنگ چل رہی ہے، جو بشر الاسد بیٹھا ہے، جس نے کل ہی بیرل بم گرا کر 200 معصوم بچوں کا قتل کیا، جو اب تک 2011 سے لے کر اب تک
2 लाख इंसानों का, मुसलमानों का कत्ले आम कर चुका है। पूरी ईरान की ताकत उसकी पुष्ट पर खड़ी हुई है। हसन नसरुल्लाह अपनी हिजबुल शैतान के साथ उसकी पुष्ट पर खड़ा हुआ है। ये अमेरिका जो पूरी दुनिया में राग अड़ात रहा है, इसने एक पटाखा उस पर नहीं छोड़ा है, इसलिए कि उस सुन्नियों का कत्ल कर रहा है। ये बशर असद उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो उस यहूदी ने कहा था, ऐ अली हम आपको अल्लाह तबारक व तआला मानते हैं और आपकी शक्ल में हम अल्लाह को देख रहे हैं। जैसे वहां ईसाइयों से कहा था कि अल्लाह हजरत ईसा बनकर आया है, यहां उसने ये कहा कि अल्लाह अली बन के जमीन पे आया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने उन्हें जिंदा जलवा दिया था हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने, और कहा तुम मेरे कुरान, मेरे नबी की शरीयत और मेरे नबी की सुन्नत, हालांकि हदीस में जिंदा जलाने को मना किया गया है, लेकिन हजरत अली का इतना गुस्सा था कि हजरत अली ने कहा कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, इसके अलावा कोई और सजा तुम्हारी नहीं हो सकती। मगर दीन इस्लाम को बदलने के लिए वो भी कैसे मजबूत यहूदी थे कि कुर्बानी दे गए, खड़े खड़े जिंदा जल गए और कहा तुम तो हमारे अल्लाह और हमारे रब हो और हमारा रब हमें जलाता है तो हम इससे राजी हैं। ऐसा की और दिनों ये वो फिरका है जो इस्लाम से अलग हुआ, जिसकी क़यादत यहूदी ने की और उन्होंने ही इनको निकल दी। अब आप कुरान को मानेंगे, सहाबा को मानेंगे या उनसे भी ताल्लुकात बराबर रखेंगे? मगर आप क्या कहें, आप तो कहेंगे कि हमारा तो कोई मामू है, कोई कहेगा साहब हमारी तो नाना जान है। अरे उमर इब्न खत्ताब के मानने वालों, सहाबा किराम की शान कुरान करीम में बयान करते हुए कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हैं जिन्हें हम सहाबा कहते हैं वो कौन है? वो कुफ़ार के लिए इंतहाई शदीद हैं। आओ पहला इस्लाम का मार्का देखो और इस्लाम का मार्का बद्र देखो। हजरत उमर के सामने टिक जाओगे तुम कल क़यामत में? हजरत उमर के सामना कर सकोगे? हजरत उमर को कह सकोगे हम तुम्हें मानते थे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के राव और दबदबे का आलम ये था कि उनके खानदान का कोई आदमी, बनु अदी का कोई आदमी मैदान बद्र में नहीं आया, एक उनका मामू आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला आगे बढ़े और अपने मामू का सर काट कर रसूलुल्लाह के कदमों में। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ऊंचा मकाम अता किया, बैतुल मुक़द्दस की फतह न उनका हाथ से मुल्क की शाम फतह करते रहे। उनका सगा बाप जब बद्र में आया तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने किसी और की तरफ अपनी तलवार नहीं उठाई, बल्कि अपने बाप का सर काट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में रखकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, तेरे सामने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं हमने, जो तेरा है वो हमारा है, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हजरत मुसअब बिन उमैर का भाई जब गिरफ्तार किया एक अंसारी सहाबी ने, तो मुसअब बिन उमैर घोड़े पर चढ़कर आए और कहा कस के बांध ले इसे, इसकी माँ बहुत मालदार है, तुझे बहुत ज्यादा फिदिया देगी। तो मुसअब बिन उमैर का भाई कहने लगा, अरे तू भाई ना रहा, तूने रिश्ते भुला दिए, तूने नाते तोड़ दिए, अरे तू किस दीन पर चला गया है? तू मेरा माँ उसी कोख में रहा है जिस कोख में मैं रहा हूँ, उसी माँ की छातियों से तूने दूध दिया है जिससे मैंने दिया है, तू मुझे कस के बांधने की बात करता है। मुसअब बिन उमैर जोश में आ गए और जोश में आकर ये कहा, रब्बे जुल जलाल की कसम, ये अंसारी है जो तुझे फिदिये के बदले में कैद कर रहा है। अगर तू मेरे सामने पड़ गया होता तो तेरे 3 टुकड़े करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को नजराने के तौर पर दे। ये थे वो सहाबा जिनके लिए कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। मैं और आप तो ये चाय की प्यारी के लिए ताल्लुकात नहीं छोड़ सकते। मैं और आप तो अपनी जुदाई नहीं कर सकते। क्या किसी काफिर को सलाम करना है? किसी शरीयत में मौलवियों से पूछा कभी? अरे किसी काफिर को अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं? नहीं कह सकते।
اگر وہ سلام کر بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے، حداک اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تجھے ہدایت دے۔ وہ جب تک اللہ کا راضی ہے اس پر سلامتی کی دعا نہیں ہوگی، لیکن ان مرتدین کو تو آپ سلام کر رہے ہیں۔ آئیے، ہمارا آپ کے بغیر کام نہیں ہے۔ ماں کو کوئی گالی دے تو تن بدن میں آگ لگ جائے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی جائیں، کوئی چہرے پر فرق نہ پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیا جائیں، اور 313 لوگوں کے نام لے کر لعنت کی تصویر بنائی جائے، اور ان کے یہاں جیسے آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ وظیفہ پڑھو یا اللہ کا تو اللہ راضی ہوگا، وظیفہ پڑھو سبحان اللہ کا تو اللہ راضی ہوگا، وہاں صحابہ کرام پر لعنت بھیجنے کی تسبیحات تقسیم کی جائیں، اور آپ ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھائیں، اور آپ ان کے قدم بڑھائیں، ان کے قدم شانہ بچانا چلیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا غضب آپ پر نہیں آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دلوں کو مردہ نہیں کر دیا جائے گا؟ صحابہ کرام نے تمام تعلقات کو توڑ دیا تھا، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ بیٹوں نے اپنی ماں سے یہ کہہ دیا کہ ایک ماں نے جب یہ قسم کھائی کہ میرا بیٹا جب تک ایمان نہیں چھوڑے گا میں پانی نہیں پیوں گی، میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، تو اس صحابی نے کہا ماں سن لے، ماں سن لے، اگر تو 70 مرتبہ بھی مر جائے اور 70 مرتبہ بھی تو زندہ کر دی جائے اور صرف یہ قسمیں کھاتی رہے تو تیرا بیٹا اسلام چھوڑنے والا نہیں۔ ارے ہم نے اسلام کے قاعدے تو پڑھائے نہیں، ہمیں کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دشمنی کرنی ہے؟ دنیا کی یہودی قوم آپ کی دشمن تھی ہے اور قیامت تک رہے گی، لہذا اس نے مسلمانوں کے ٹکڑے کرنے کے لیے ایک نیا دین ان کو بنا کر پیش کر دیا، اور انہوں نے انہیں لکھ کر کے دے دیا، ایسا دین لکھ کر دیا جس میں زنا کو حلال قرار دے دیا گیا۔ کہا یہ بخاری شریف ہم اسے نہیں مانتے، یہ تو ٹکے ٹکے پر لکھی گئی ہے، ہمارے پاس تو ہماری اپنی کتاب ہے، اور اس کتاب میں تمام روایتیں نعوذ باللہ ان اماموں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان سے منسوخ کر دی گئی۔ ایک کتاب میں لکھ دیا گیا، ایک کتاب میں لکھا کہ ایک مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، ایک عورت مقدمہ لے کر آئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر یہ کہتی ہے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تو حضرت علی نے اس آدمی سے پوچھا کہ تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر عورت سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتا معاملہ کیا تھا؟ عورت کہتی ہے کہ میں جنگل میں تھی، یہ بھی جنگل میں تھا، میں پیاسی تھی، میں نے اسے پانی مانگا تو اس نے کہا کہ میں پانی تو تجھے دے دوں گا لیکن تو مجھے اپنے جسم پر قدرت دے۔ میں مجبور ہو گئی پانی کی وجہ سے، میں نے اپنے جسم کو قدرت دے دی، لہٰذا اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرسی سے اٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم یہ زنا نہیں، یہی تو عین نکاح ہے۔ یہودی بھی اسے زنا کہیں گے، عیسائی بھی زنا قرار دیں گے، باقی اور قومیں بھی اسے زنا ہی کہیں گی، اور پر زنا کا مقدمہ چلے گا۔ یہ الگ بات ہے ان کا کیا قانون اس کے لیے ہے، مگر یہاں تو حضرت علی کو منسوخ کر دیا گیا کہ یہ تو عین نکاح ہے جو جائز ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا ڈرتے رہنا، خوف زدہ رہنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی ہے اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی ہے، اس لیے کہ وہ میرے سپہ سالار ہیں، اس لیے کہ وہ میرے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ انہیں کی بدولت اسلام کا ڈنکا دنیا میں پھیلا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا فبغضی ابغضہم، اس نے مجھ سے بغض رکھا، وہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہو؟ ایک قدم دیکھو صحابہ کا۔ میں چند دنوں پہلے ابھی قرآن کی تفسیر سورہ
सूरह तौबा की पढ़ रहा था और मैंने लोगों को सुनाया। जब मैंने देखा कि तबूक का जब मौका आया और ईसाइयों से मुकाबले का वक्त निकला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों, रूमियों से मुकाबला है, एक सुपर पावर ताकत से मुकाबला है और उस ताकत से मुकाबला करने के लिए आपको सब कुछ देना होगा। तो आज इम्तिहान आया लोगों का कि कौन क्या देता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने पहली मर्तबा 100 ऊंट पेश किए जिन पर पालान लगे हुए थे, जिन पर कजावे कटे हुए थे। रसूलुल्लाह ने कहा, क्या उस्मान और भी खर्च कर सकते हो? तो कहा, अल्लाह के रसूल, इसी तरह लदे हुए सामान से लदे हुए 100 ऊंट और देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या उस्मान की दाता कर सकते हो? तो आपने फिर कहा, 100 ऊंट और दे सकता हूँ। 300 ऊंट दिए, 200 औसिया चांदी दी, 29.5 किलोग्राम चांदी दे दी और इसके बाद फिर गए अपने घर में और 1000 दीनार, 5 किलो सोना, 5.5 किलो सोना लाकर रसूलुल्लाह की झोली में डाल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अशरफियों को उलटते जाते थे और कहते जाते थे, उस्मान, आज के बाद तुझे कोई भी गुनाह और कोई खता नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो उन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला जिनके बारे में आप ये फरमाएं, जब वो तशरीफ लाएं तो हजरत उस्मान गनी को देखकर आप अपनी पिंडी से चादर को नीचे कर लें और कहें कि उस्मान वो हया वाला है। कि उस्मान की हया को देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं। जब हजरत रुकैया का इंतकाल हो जाए तो आप अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम को आपके निकाह में दे दें और फिर उम्मे कुलसूम भी हजरत उस्मान को छोड़कर चली जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उस्मान, अगर मेरे पास कोई तीसरी बेटी होती और तो मैं उसको तेरे निकाह में दे देता, वो तीसरी ही नहीं, अगर अल्लाह मुझे बेटियां देता चला जाता, यहाँ तक कि उनकी तादाद 70 ही क्यों ना हो जाती और वो एक एक करके रुखसत होती चली जाती, तो मैं एक एक को तेरे निकाह में देता चला जाता। जो लोग हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को काफिर कहें, उन्हें मुर्तद कहें, उन पे लानत भेजने को सबाब समझें, आप उनके गलों में बाहें डाल करके आप घूमें, आप इसाले सवाब में शरीक करें और फिर कहें कि आपके मुद्दे पर रहमत होगी, अल्लाह के घरों में उनके आने की परमिशन दें। हैरत है आप पर, अफसोस है आप पर। शायद मेरी बातें कहलवाने के लिए आज हम पे मेहरबानी की शाहिद अली साहब ने, ऐसे साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम इस मजहब की बातें अपने सुन्नी भाइयों को बता सकते, न तुम करने हमें देते, न हम फरियादियों करते, न खुद से राज सर बसता, न यूं रुसवाइयां हो। मेरा काम पैगाम पहुंचा देना, पैगाम आप तक पहुंचा देना। ये मुल्क आज की तारीख में एक ऐसा मुल्क है जहां इंसानों को नंगा रहने की इजाजत है। जैन समाज नंगा रहता है, कोई उसको नहीं कहता। हम अपने सहाबा की अज़मत बयान करेंगे, हम किसी पर न तबर्रा करते हैं, न तंकीद न तंकीद, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि हक क्या है और बातिल क्या है। हम ये बताएंगे कि पखाना और गिलाफत क्या है और किक्र क्या है। हम ये आपको बताएंगे कि मुर्दार का गोश्त हराम है और कयामत तक हराम रहेगा। हम आपसे कहेंगे कि खिंजीर हराम है तो कयामत तक हराम रहेगा। हम आपसे कहने आए हैं कि ज़िना हराम है तो कयामत तक हराम रहेगा। कोई उसे हलाल नहीं कर सकता है, उस पर हलाल का लेबल लगाकर वो हलाल नहीं हो सकता है। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, दूसरे उमर इब्न खत्ताब हैं और तीसरे हजरत उस्मान हैं और चौथे हजरत अली हैं। हमारा ये ईमान और अकीदा है, दुनिया माने या ना माने, हम हर हाल में आपको बताने के लिए आए हैं। इसलिए बताने आए हैं कि आज सांस का दौरा चल रहा है, कल कयामत के मैदान में आपको जमा होना है, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जमा होना है। लिहाजा जो शख्स ये अकीदा रखता हो कि कुरान 40 पारे था और कुरान आज 30 पारे रह गया है, ये कुरान हजरत उमर ने अपनी ताकत से बदल दिया है, ये
कुरान अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कुव्वत से मिटा दिया है, ये कुरान उस्मान गनी और अबू बकर और उमर इन तीनों की साजिश से तब्दील कर दिया गया है। वो खाली इन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि वो हजरत अली का दुश्मन है और ये कहना चाहता है नऊजुबिल्लाह कि हजरत अली ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। हजरत अली में हक कहने की कुव्वत न थी, हजरत अली में हक कहने की ताकत न थी, हजरत अली हक को छुपाते रहे। हजरत अली को भी वो मुर्तद करार देता है और ये करार देता है कि उनमें भी हक बात कहने की जरूरत न थी, वो उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला का सहाबी का खाली दीन पर इल्जाम थोड़ी है, हजरत अली पर भी। जो ये कहता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैठक के मारे कर ली, जो ये कहता है कि हजरत उमर के सामने कपा उठे और उनके हाथ में हाथ दिया और बैठ कर ली, जो ये कहता है कि हजरत अली हजरत उस्मान के सामने टिक न सके और उनके हाथ पर बैठ कर ली, तो वो हजरत अली पे इल्जाम नहीं लगा रहा। अरे हजरत अली का बेटा तो यजीद के खिलाफ उठ खड़ा हो और तलवारों की झंकार में सजदे अदा करे और करबला में जान दे दे, और बाप इतना गया गुजरा हो कि हजरत उमर के 10 साल बर्दाश्त करे और बकर सिद्दीक के 2.25 साल बर्दाश्त करे और हजरत उस्मान के 12 साल बर्दाश्त करे, और जब अमीर माविया का मसला है तो तलवार निकाल कर खड़ा हो जाए। याद रखिए ये फिरका वो है जिसे किताबें लिखकर जिसे तहरीर यहूदियों ने दी है, और उसने ये तय किया है कि हमें ऐसे ही काम करना है क़यामत तक जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को काम। हम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला को अल्लाह तबारक व तआला का शेर कहकर पुकारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के साथ लगाते हैं सिद्दीक, तो हजरत उमर के साथ लगाते हैं फारूक इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने हक व बातिल का फर्क करके दिखाया कि नाम लेने से मुसलमान नहीं होता, बल्कि बाद मुसलमान तो वो है जो कुरान की जद में आता है तो कुरान उसके सर का मुतालबा करता है। फारूक को उससे पहले न बने, ईमान तो वो मक्का में ले आए थे, हिजरत तो मदीने में की थी, लेकिन जिस दिन इस्लाम ने हाथ मुसलमान का सर तन से जुदा किया है उस दिन आसमान से उन्हें खिताब मिला, मेरे उमर ने आज हक और बातिल को जुदा कर दिया है, आज इसका नाम उमर फारूक है। उस्मान को हम जिन्नूरैन कहते हैं, 2 नूरों वाला। ये मौका नहीं है कि उन्हें 2 नूर वाला क्यों कहा जाता है, इसकी यही वजह नहीं है कि आप 2 बेटियों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौहर हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको जिन्नूरैन कहा जाता है। लेकिन हम हजरत अली को भी हैदर कर्रार कहते हैं और उन्हें भी हम साहिब जुल्फ़िकार कहते हैं, हजरत अली को हम शेर खुदा कहते हैं। अगर इनके साथ भी हम रज़ियल्लाहु अन्हु लगाते हैं तो हजरत अली के साथ भी हम अपने खुतबे की नमाज में, जुमे की नमाज में, दूसरे खुतबे में कर्रमल्लाहु वजहहु। हमसे कौन क्या कहेगा और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आप अपने आप को निजात से बचाओ, आप अपने आप को गंदगी से बचाओ। अगर अच्छा संतरा भी सड़े हुए संतरे के बराबर में दिया जाए तो सड़ जाएगा कि नहीं? खरबूजा रख दिया जाए उसके बराबर में तो सड़ जाएगा। इसलिए बेचारा ठेले पर खड़ा हुआ फल बेचने वाला दिन भर छांटता रहता है, सड़े हुए की अलग लगा देता है ठेली और उधर को अलग कर देता है, लेकिन इसकी सोबत से भी खराब ना होता है। लिहाजा अपने महल्ले अलग कर लो, अपने घर अलग कर लो। अगर अज़ाब इलाही आया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो अलहदा रहने वाले बच जाएंगे। जब बनी इसराइल के उन लोगों ने जिन्होंने हीले बहाने निकालकर मछलियां पकड़ ली थी और मछलियां पकड़कर हीले बहाने किए थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत में हफ्ते के दिन मछली पकड़ना जायज न था, मगर उन्होंने हीले बना करके मछलियां पकड़ी। अल्लाह तबारक व तआला के सिर्फ इस हुक्म को तोड़ा कि जुमे की रात में कांटे डाल दिए, शनीचर के दिन उनमें मछलियां फंस गई, इतवार के दिन उनको निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने उनको मना किया, ऐसा मत करो। कुछ लोगों ने कहा अरे मियां करने दो, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो अहले हक ने जबान से मना किया और अपनी बस्ती उनसे अलहदा कर ली, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया कि हम तुम्हारे शरीक नहीं हैं, तुम अल्लाह तबारक व तआला के वादी हो। हालांकि उन्होंने खुलेआम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, सिर्फ हीरा किया था कि अल्लाह ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने को मना किया है, हम हफ्ते में क्या
पकड़ रहे हैं, हमने तो कांटे डाले हैं, हमने तो पानी उलीचा है, हमने तो अड्डियां बनाई हैं, लिहाजा हमने तो इतवार में पकड़ी है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया तो ये कौम यहूदी कौम है, रात को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कूनो क़िरदतन ख़ासिईन, ये ज़लील बंदर और खंजीर बन कौन बचे? जिन्होंने मना किया था और अपने आप को अलहदा कर लिया था, जो खामोश बैठे थे वो भी अंदर बना दिए गए, वो भी बना दिए गए। यहूदी ये चाहते हैं कि जिस तरह हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके खंजीर और बंदर बनाए गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला की लानत की आज तक मुस्तहिक है, इसी तरह ये कौम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानकर, ये अल्लाह के कुरान को मानकर अल्लाह की महबूब कैसे हो गई, ये अल्लाह की जन्नत की मुस्तहिक कैसे हो गई, जिब्रील इन पे फजीलतें क्यों ला रहा है, जिब्रील इनके रहमतें क्यों ला रहा है। ये कौम भी अल्लाह की ऐसी नाफरमानी करे ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी सूरतों को मत कर दे और इसी भी जहन्नम में दे। कभी कुव्वत और ताकत के साथ उन्होंने अपने आप को हम पर मुसल्लत किया, आपको तारीफ में पता नहीं। जब ये कुव्वत और ताकत में आए तो पूरा इराक और पूरे तमाम से तमाम अरब इलाकों को कत्लेआम किया गया, मिटा दिया गया, तबाह कर दिया गया, जबरन सब कुछ हमारे साथ किया गया। यहाँ भी बादशाह आए हिंदुस्तान में जो अपने जुल्म और ताकत की बुनियाद पर उन्होंने अपने धर्म को लागू किया और जारी किया। यहाँ नवाब आए, उन्होंने हमारे सरों को उठने नहीं दिया और उनके पास क्या था? उनके पास ये था कि अय्याशी होती रहे। कि रामपुर के नवाब की, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, आपको तारीख याद नहीं है? रामपुर के नवाब कल्बे अली खां सुन्नी हुआ करते थे, उनके बाप दादा सुन्नी हुआ करते थे, लेकिन उनमें हामिद अली खां आया जिसे अय्याशी का शौक था, जिसे अय्याशी का शौक था। लिहाजा सुन्नी दीन में तो 4 से ज्यादा शादियों की इजाजत नहीं मिल सकती थी, सिर्फ एक वक्त में 4 बेटियां रख सकता है। फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 4 से सिर्फ कर सकते हो, 5 भी नहीं रख सकते, और 4 से भी उस वक्त कर सकते हो जब चारों के बीच इंसाफ कायम कर सको। लेकिन जाहिर है कि इसमें तो उसे अय्याशी करने का रोज नया मौका नहीं मिल सकता था। लिहाजा उसने वो दीन इख्तियार किया कि जिसमें हर घंटे के लिए इजाजत है, हर रात के लिए इजाजत है, और वो खानदान आज तक उसी में चला रहा है। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी, सहाबा से तस्कीरे वाली, एक तो सहाबा से मोहब्बत करो, और इस्लाम से मोहब्बत नहीं सिखाता, नफरत भी तो सिखाता है। कुरान की पहली आयत और पहली सूरत जो शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? बता दो। अरे क्यों शर्मा रहे हो? तो टेक्स्ट थोड़ी लगेगा। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा लिखी हुई इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने से पहले आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहने से पहले एक और स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है, और वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। शैतान रजीम, रजीम जानते? रजीम कहते हैं पत्थर मारने को रजीम कहते हैं। लिहाजा शैतान इस काबिल है कि उसके पत्थर मारे जाएं। यही वजह है कि हज नाम है 2 चीजों का, एक इसको मोहब्बत का इजहार, जबान पर हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, नेमतें तेरे लिए है, तारीफ तेरे लिए है, वास्ताहत के लायक कोई नहीं है। लिहाजा जबान पर तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का इजहार हो, तवाफ करके अल्लाह की मोहब्बत का इजहार, हज़रत अस्वद को चूम कर ये इजहार कि मैंने अल्लाह के हाथ को बोसा दे दिया है, रुकने यमानी पर हाथ लगाकर ये हो कि मैं अल्लाह की तलाश में भागा फिर रहा हूँ, कभी सफा पे दौड़ रहा है, कभी मरवा पे दौड़ रहा है, वो नंगे पैर है, वो नंगे सर है और बाल बिखरे हुए हैं, गर्दो गुबार आलूद है, इसको मोहब्बत का मुजाहरा कर रहा है। लिहाजा हज नाम है इसका, जिधर जाए तो कहीं दरो दीवार को चूम रहा हो, तो कभी सफा मरवा पे अपने नंगे पैर घूम रहा हो, कभी दौड़ लगा दे, कभी खाने काबा की तरफ हाथ उठाकर दुआ कर रहा हो, कभी मुज़दलिफे में जाए अपने आत्मा सूख को तलाश
तलाश करने के लिए, कभी अराफात में खड़ा हो जाए, कभी जबल नूर पे चढ़ जाए, कभी जबल रहमत पे पहुंच जाए, यानी इसका वो इसकी अदा पेश करे कि वो अल्लाह तबारक व तआला का आशिक है। रास्ते में उसे उसका दुश्मन मिल जाता है जो रुकावट बनता है, वहां खड़े होकर वो पत्थर मारता है जिसे रमी जिमार कहा जाता है। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान खड़ा हो गया, लिहाजा शैतान की तरफ कंकरियां मारी गई। कंकरी कब मारी गई इब्राहिम ने? कब इब्राहिम ने शैतान के कंकरियां मारी है? आज कौन सी सदी है? कयामत तक जितने हाजिर ही हज करने के लिए जाएंगे, अल्लाह ये कहता है मैं तेरा हज जब कबूल करूंगा कि जब तू शैतान के कंकरियां मार दे, तेरी कुर्बानी का जानवर उस वक्त कबूल किया जाएगा जब तू कंकरियां मार दे। कंकरियां मारने के बाद अब पता चला कि तू मुझसे मोहब्बत करता है और शैतान से नफरत करता है। लिहाजा अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत और उसके दुश्मनों से नफरत, ये है इस्लाम, ये है ईमान, ये है इश्क, ये है मोहब्बत। आप कहें कि नहीं साहब हम तो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और शैतान से इसको भी राजी करेंगे, ये इश्क नहीं है, ये ढकोसला है, ये निफाक है, ये मुनाफिकत है। बस मेरे दोस्तों अजीजों, अगर आप हजरत अली से मोहब्बत करते हो तो हजरत अली शुजाअत व बहादुरी का नाम है। अगर आप हजरत उमर से मोहब्बत करते हो तो हजरत उमर नंगी शमशीर का नाम है। अगर आप खालिद बिन वलीद से मोहब्बत करते हो तो दुश्मनों के होश उड़ा देना और इस्लामी सल्तनत के रब्बे को आगे बढ़ा देना, ये खालिद बिन वलीद का नाम है, जिनका नाम ही सैफुल्लाह है। अगर आप हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हो तो दुश्मन के सामने हथियार न डालना और जालिम की आंखों में आंखें देकर उसके सामने खड़े हो जाना, ये हुसैनियत की पहचान है। लिहाजा सुन्नियत वो है जो हर दौर में बातिल को चैलेंज करती रहेगी और इंशाअल्लाह कर रही है, सुबह क़यामत तक करती रहेगी। घबराओ मत, वो दिन वो दौर आने वाला है जब दुनिया की यहूदियत का भी खात्मा होगा और उनके एजेंटों का भी खात्मा होगा। अल्लाह के बाद कभी जमीन से सर उठा के न जिए हैं न जी सकते हैं। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। बशर्त ये है कि आप खाली हो जाओ। अगर दूध को पानी की सोबत मिल गई और पानी डाल दिया गया तो तादाद तो बढ़ जाएगी, किलोग्राम के हिसाब से तो ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हकीकत खत्म हो जाएगी कि नहीं? डीजल में मिट्टी का तेल मिला दिया जाए तो आपका इंजन चल जाएगा, ट्रैक्टर खूब दौड़ेगा, 50 किलो का 100 लीटर का 50 लीटर का 100 लीटर हो गया। क्या वो असल भी खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पेट्रोल में अगर डीजल मिला दिया जाए तो क्या वो पेट्रोल की कार को चलाने के काबिल रहेगा? हरगिज नहीं रहेगा। ये हवाई जहाज से उड़ाया जाता है, इसको ओरिजिनल पेट्रोल दिया जाता है जो व्हाइट होता है, बिल्कुल सफेद होता है, वरना हवाई जहाज फजा में उड़ नहीं सकता है। लेकिन आप समझते हो कि मियाँ हम इस डीजल को मिलाकर, मिट्टी के तेल को मिलाकर, इस केरोसिन को मिलाकर मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। ऐसे तो आप सबसे मिलकर शायद डर जाएंगे, उन्हें पता है कितनी ओरिजिनल की है और कितनी डुप्लीकेट। नहीं, हमें किसी को डराने और घबराने का कोई मसला नहीं। हमें अपने अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है। अल्लाह तबारक व तआला की रजा की फिक्र में लग जाइए। आज के बाद यहाँ से ये अहद करके उठिए कि अगर मैं अपने बाप को गाली देने वाले से नफरत करता हूँ, अगर मैं अपनी बीवी को गाली देने वाले से नफरत करता हूँ, अगर मैं अपनी माँ को बुरा कहने वाले से नफरत करता हूँ, जिंदगी भर उसके दस्तरखान पर नहीं बैठूंगा। रब्बे काबा की कसम, हम तो वो कौमें हैं, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बिजनौर का क्या मिजाज है, हम रामपुर के रहने वाले हैं। खुदाए जुलजलाल की कसम, हमारे यहाँ पार्टी बंदियां हैं, जिंदगियां पूरी गुजर जाती हैं, लेकिन अगर हमारे बाप की शान में किसी ने तौहीन की है तो क्या मजाल है कि हमारा कबीला उसके दस्तरखान पे कभी जाकर के खाना खाते हैं। 10-10 साल गुजर जाते हैं और शादी और निकाह के मौके पर हम निकल खड़े होते हैं कि नहीं,
इसने कल हमारे बाप और भाई के थप्पड़ मारा था, लिहाजा हम इसकी खुशी में शरीक नहीं होंगे। जनाजे को हम कांधा दे या न दे वो एक अलग बात है, लेकिन हम इसके दस्तरखान पर नहीं जाएंगे, चाहे पूरा जिला उमड़ कर आ जाए, हर सियासी नेता इसमें आ जाए। हमें अपनी चटनी रोटी बर्दाश्त है, लेकिन हमें अपने बाप का गाली देने वाला या उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला या हमारे भाई के एक तमाचा मार देने वाला या हमारे भाई की पिंडी पर एक हथियार चला देने वाला, क्या हम मकाल है? हम जेल की सलाखों में तो जा सकते हैं, लेकिन हम उसके दस्तरखान पर कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं जाएंगे। जब एक दुनिया के लिए हमारी गैरत का ये आलम है, तो सहाबा के लिए, नबी के सितारों के लिए, माँ आयशा के लिए, माँ हफ्सा के लिए, उम्मे हबीबा के लिए, हजरत खदीजा के लिए, हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम नबी की बेटी के लिए हम वो कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते कि हम उसको ठोकर मार दे? आओ एक बात सुनाकर आपकी बात अपनी बात खत्म करता हूँ। आज अफगानिस्तान की कौम रब्बे काबा की कसम दुनिया में सर उठाकर दी रही है। 55 मुल्क उसे तोड़ने के लिए आए, लेकिन ना तोड़ सके। उनका हौसला खत्म करने के लिए आए, उनका हौसला ना खत्म कर सके। ये ईरान उनकी पुष्ट पर बैठा रहा, रूस पुष्ट पर बैठा रहा, ताजिकिस्तान पुष्ट पर बैठा रहा, लेकिन वाह रे माओ, तुमने 14 साल में फाते की जिंदगी गुजार कर सारी दुनिया की ताकतों को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया है। 3 दिन पहले सारी दुनिया की मीडिया पर खबर छपी है कि एक बरतानिया का फौजी वहां से वापस निकल गया है, सबसे बड़ा एयरबेस छोड़कर गया है, यूनियन जेट जमीन पर फेंक दिया गया और बरतानिया का झंडा ऐसे ही पैरों में रौंद दिया गया जैसे हिंदुस्तान में मुजाहिदीन आजादी ने रौंद दिया था। वो क्यों इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले पर टिक सके? वो कौन सी चीज थी? मौलाना नूर आलम खलील अमीनी ने ये बात लिखी है अपनी किताब में, रॉयटर्स ने ये बात बताई है कि उस वक्त जंग के मौके पर अफगानिस्तान में अमेरिकन हेलीकॉप्टरों ने डबल रोटी के पैकेट जमीन पर गिराए। मासूम बच्चे भूखे थे, माओ के लाल प्यासे थे, उनको जब रोटी की खुशबू आई तो वो घुटनों से दौड़कर उस रोटी को उठाने के लिए चले। जब माँ की नजर उस बच्चे पर पड़ी जिसके हाथों में डबल रोटी थी, वो उसे खोलना ही चाहता था, अपने होठों से लगाना चाहता था, तो माँ चीखती हुई आ गई और कहा, नहीं बेटे, इस रोटी को अपने मुंह में मत उतारना, मैंने हलाल दूध तेरे जिस्म में उतारा है, ये रोटी तेरे दुश्मन की है, इसमें हराम भी हो सकता है, मैं दुश्मन का पैकेट तेरी आंखों में नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे जिस्म से हराम लुकमे से तेरे गोश्त को नहीं बढ़ने दूंगी। उठाया और उस पैकेट को चूल्हे में जला दिया और उसके बाद जानवर को खिलाने वाला भूसा उठाकर लाई, उसे अपने दांतों से चबाता और उसे दांतों से चबाकर अपने होठों से अपने लाल के मुंह में रखा, कहा इसे चूस ले, इसलिए कि 1450 बरस पहले सहाबा ने भी अपने बच्चों को शेर अबी तालिब में इसी तरह पेड़ की छाले खिला करके जिंदा रखा था, इसी तरह पत्ते चबा करके जिंदा रखा था। और अल्लाह से कहा है, माला अगर तू मछलियों को समंदर में खिला सकता है, अगर तू परिंदों के बच्चों को पेड़ों पर जिंदा रख सकता है, तो मेरा लक्ष्य जिगर ही इस बूझे से जी सकता है। अगर एक भैंस और गाय जी सकती है तो मेरा नन्ना लाल क्यों नहीं जी सकता? मैं इसे तेरी राह का शहीद और साथी बनाना चाहती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के सर पे आज इज्जत का ताज रखा है, तो जो मिटाने आया था आज अपना बोझ बिस्तर समेट दिया। बस जिस दिन ये तय कर लोगे कि अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की शहद की रोटी भी नहीं खानी, उस दिन खुद अल्लाह की मदद आ जाएगी, उस दिन आएगी अल्लाह की मदद। और जिस दिन आप उनके टुकड़ों पर चलोगे तो फिर कुत्ता कहलाया जाता है दूसरों के दर पे जाने वाला। कुत्ते ने शिकायत की थी जंगल में शेर से कि जनाबे वाला, आप जंगल के सरदार हैं, हमारे साथ बड़ा जुर्म होता है, हमें हर एक कुत्ता कहता है, लंगूर देखो वो हमें कुत्ता कह रहा, हमें हाथी कुत्ता कहता है, हम तंग आ गए हैं, हमारी अर्जी सुन लीजिए, हमें लोग कुत्ता कहना बंद करें। शेर ने कहा, बिल्कुल आपकी अर्जी सुनी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको साबित करना होगा कि आप कुत्ते हैं, आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। कहा, सरकार बताइए क्या इम्तिहान देना पड़ेगा, हम तैयार हैं ताकि पूरी जिंदगी माथे का कलंक छूट जाए। कहा, ठीक है, आपके सामने गोश्त के टुकड़े रखे जाएंगे,
दोपहर तक आप वही खाना। गोश्त के टुकड़े कुत्ते के सामने रखे गए। अब जाहिर है कि सामने गोश्त और उसकी खुशबू उससे लगाओ और फिर कुत्ता और उसकी जुबान लान टपक। कई बार दिल ने चाहा कि खा लो, फिर आवाज आई अंदर से कि अगर खा लिया तो फिर इम्तिहान में फिर दुनिया कुत्ता करेगी। फिर रुके, जब घंटे गुजर गए कहा कि अरे मियाँ कब तक सब्र होगा, दुनिया को कहने दो, कुत्ता कह रही है गोश्त खाओ और मजा लो। कहीं यही सूरत हाल हमारी तो नहीं, यही तो नहीं। हाँ, हिंदुस्तान ही नहीं, जयपुरी ही नहीं, कुछ तकरीबन पूरी दुनिया का ऐसा ही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के बातों पर यकीन किया, थोड़ा सा सब्र किया। अरे हमें तो 3 दिन सब्र की मदद कराने के रमजान की शक्ल में दिए जाते हैं, नहीं कर सकते हम। जब तय कर लोगे इंशाअल्लाह मंजर बदलेगा, समा बदलेगा, हालात बदलेंगे। लाउड स्पीकर से जब ये बात कह सकोगे, मस्जिद की मीनारों में भी कह पाओगे, सड़क पर भी कह पाओगे, लेकिन जब तक ये नहीं छोड़ोगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद नहीं आने वाली। अल्लाह मेरी और आपकी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हमारी खोई हुई ज़मीन को दोबारा से लगा दे और अल्लाह हमें एक साथ नसीब फरमाए। वाह